Hello, good morning, students. We are starting with video number 10 in this, and this is chapter 2. We're doing electrostatics part 2. Today, we're going to solve some examples of NCRT, like question number 2.1, 2.2, 2.3, and 2.4. So let us begin with question number 2.1, which is given in NCRT on page number 55. The first question has three parts. In the first part, he says that there is a charge, a positive charge, and we are asked to find the potential at the point P, which is 9 centimeter away from it. So it is a straightforward question. Let us learn the formula for the potential due to a charge at a point. The formula is K multiplied by the charge with proper sign divided by the distance between the charge and the point. We know the value of K. The value of charge is plus 4 into 10 raised to minus 7 divided by the distance. So that is 0.09. And if we solve this, we get 4 into 10 raised to 4 volt. So that's how we find the potential at the point P. Second part of the question says, to find the work done in moving a charge Q naught whose value is given from infinity to the point P. Again, it's a straightforward question based on the formula that work done in moving a charge from one point to another, say from A to B, is equal to charge multiplied by the potential difference between the 2 points A and B. In this case, we have to find the work done in moving this charge Q naught from infinity to P, and therefore the potential difference should be from infinity to P. But how do we write potential difference between infinity to P? It is Vp minus Vq. That's the important step, students. So Vp minus Vq. Now we got to know कि जो पोटेंशियल है एट इन्फिनिटी वो ज़ीरो होता है, तो इट इज़ क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई वी पी, and the value of Vp is already given to us. We can multiply, and the work done turns out to be 8 into 10 raised to minus 5. You can either write the unit as Newton meter or simply as joule. Now we start with the third part. He says, does the work done in electrostatics depend upon the path that is chosen? Firstly, the answer is clearly no. It doesn't depend upon the path. Take, for example, 2 points A and B, initial and final point. We can move a charge from A to B via path 2. We can move a charge via path 1 like this. We are saying that the work done in case 1 and in case 2 will always be equal. Now, we want to know what is the reason for that. If you take any displacement, say delta x, then this displacement delta x can be resolved into two perpendicular components. One perpendicular to this path r and the other parallel to it. We know that the work done in moving a charge perpendicularly like this is going to be 0, and the work done will depend only on this component. This component. So it tells us that the work done simply depends on the initial and the final point and does not in any way depend upon the path.
So this is how we show that the work done does not depend upon the path that is chosen. We now begin with example number 2.2, which is on page number 58. The question says, find the points along the line AB where the potential is 0. Let me explain the question to you. There are two charges, positive and negative charge. The positive charge has a value 3 into 10 raised to minus 8 coulomb, and negative charge has a value 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. Separation distance is 15 centimeter. Now we have to apply a little bit of our mind. We have to figure out कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा. थियोरी में आपने देखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है, एंड एज वी गो अवे एंड अवे पोटेंशियल डिक्रीज करता है. इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होगा. तो एक पॉसिबिलिटी हमको कंसीडर करनी है कि क्या हम उस पॉइंट को यहां पे ले सकते हैं टू द लेफ्ट. आप देखें ये चार्ज की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8. तो इफ आई गो अवे तो पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज का यहां तक, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस चार्ज की वैल्यू बहुत कम है. तो नेचुरली ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो कभी भी इस पोटेंशियल को यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल को बैलेंस नहीं कर सकता. सो वी आर कमिंग टू ए कंक्लूजन कि जो पॉइंट है वो लाई नहीं कर सकता टू द लेफ्ट ऑफ द चार्ज ए. रीजन आई हैव टोल्ड यू. सो द अदर रीजन इज कि वो पॉइंट लाई करे बिटवीन द टू चार्जेस. मान लिया ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज का, मान लिया नेगेटिव चार्ज का अगर डिस्टेंस मैं x1 मान लूँ तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ 0.15 माइनस x1. नाउ वी हैव टू यूज प्लेन एंड सिंपल थियरी. क्या कि पोटेंशियल एट द पॉइंट P1 विल बी पोटेंशियल एट द पॉइंट P1 ड्यू टू चार्ज नंबर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू at the point P1 due to charge number 2. तो फॉर्मूला वही है स्टूडेंट्स जो अभी आपने सुना था, वो है K Q with proper sign divided by the distance. इसको अब हमने सॉल्व कर लिया एंड x1 की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर. मतलब इस चार्ज से ये पॉइंट P1 lies 9 सेंटीमीटर अवे. Let us now see what is the other possibility of having the potential 0. वो possibility है कि हम इस point P को P2 को right में ले लें of the point B, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होगा. पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और दूर जाएंगे तो कम होगा. तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एट द पॉइंट P2 ज़ीरो होना है तो वो जो है दैट वुड बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कि पोटेंशियल एट द पॉइंट P2 बिकॉज ऑफ चार्ज नंबर 1 plus potential at the point P2 because of charge number 2. I may call this as 1 and that as 2. So we just substitute the values in the formula K Q divided by the distance 0.15 plus x2 and यहाँ पे हो जाएगा
k इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x2। यहाँ से स्टूडेंट्स हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये x2 की वैल्यू विल बी 0.30 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P2 है ये 30 सेंटीमीटर अवे है टू द राइट। So we start with example number 2.3 of NCERT on page number 59. Students, may I inform you कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन में से कितनी बार छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। Let me start with part A, which says कि find the sign of the following. I'm explaining the question first. यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट टू द राइट। क्वेश्चन में दो पॉइंट्स दिए हैं P एंड Q। एट द पॉइंट P पोटेंशियल VP है एंड एट द पॉइंट Q पोटेंशियल है V सफिक्स Q। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट द पॉइंट P ये है एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट द पॉइंट Q है potential energy at Q like this. Question asked is, what is the sign of the charge of Vp minus Vq? Students, हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा पॉइंट करती है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट कर रही है फ्रॉम P टू Q। इसका मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट P हायर है और पोटेंशियल एट द पॉइंट Q लोअर है। तो Vp ज़्यादा है, Vq कम है, देयरफॉर द साइन इज पॉजिटिव। देन ही सेज कि फॉर ए नेगेटिव चार्ज what would be the sign of potential energy at Q minus potential energy at P? Students, हमें इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना है। क्या कि जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा उनका सम कांस्टेंट रहता है। व्हाट इट मीन्स इज कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का साइन डिटरमिन करने से पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना होगा। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है Q पे और वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स P, तो नेगेटिव चार्ज इज कमिंग क्लोजर टू P, तो वो तो अट्रैक्ट हो जाएगा और अट्रैक्शन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट P डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो साइन है इसका विल नेचुरली बी पॉजिटिव। तो जब आपने साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो तो आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड देख के आंसर करते हैं, और जब आपने डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी हो तो आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P? सी स्टूडेंट्स, हमने इस डायग्राम को फिर से यहाँ बना लिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड तो राइट में है, ये चार्ज है Q0। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। तो सबसे पहले हमें फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बाय द फील्ड पता होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उस चार्ज को हम कैसे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को Q से P की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो गई। अब आपने देखा कि जो ये एंगल है ये 180 डिग्री है,
तो हम सिंपल फॉर्मूला याद कर लें कि जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू पाई है और अगर कॉस थीटा पाई है तो उसकी वैल्यू -1 होती है एंड दैट मेक्स द वर्क डन नेगेटिव। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू मैथमेटिक्स हम ये याद कर सकते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वर्क डन विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव। चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं इन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स ही सेज कि अब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है कैपिटल क्यू, तो नेचुरली इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी लाइक दिस इन दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहां पे पोटेंशियल वी ए वी बी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि फाइंड द साइन ऑफ वी बी माइनस वी ए। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हम पहले क्या देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बी से ए की तरफ है। इसका मतलब पोटेंशियल एट बी हायर है, पोटेंशियल एट ए लोअर है। सो बी पे हायर है, ए पे लोअर है, तो इसका आंसर विल नेचुरली बी व्हाट, पॉजिटिव। देन सेकेंड पार्ट में ही सेज कि फॉर ए नेगेटिव चार्ज विच मूव्स फ्रॉम बी टू ए। देखिए हमने अभी लर्न किया था कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करना चाहते हैं तो हमें पहले काइनेटिक एनर्जी सोचनी होगी। अगर नेगेटिव चार्ज मूव करता है टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज तो नेचुरली देयर वुड बी रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, तो डिफरेंस आया पॉजिटिव। देन ही सेज व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्क डन by the external agent in moving a negative charge from B to A। स्टूडेंट्स आप खुद सोचें, क्या एक नेगेटिव चार्ज अगर मैं बी पे रख दूं, कैन इट मूव ऑन इट्स ओन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज? क्लियरली नो। तो एक एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा फ्रॉम बी टू ए सो दैट इट कैन मूव फ्रॉम बी टू ए। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देखें कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन थी वो तो लेफ्ट में थी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी लेफ्ट में है, और जो एक्सटर्नल एजेंट है वो फोर्स कैसे लगा रहा है, टू द लेफ्ट। तो मैं इसको F एक्सटर्नल लिख देता हूं, एंड आप देख रहे हैं F एक्सटर्नल और डेल्टा एक्स दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो ये इन ऑल 6 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे which can be asked in the exam. Please do them nicely. So let's begin with question number 2.4, and it's given on page number 63 of NCERT. Question ये है कि find the work done in assembling the charges from infinity to the point A, B, C and D. So students, may I just explain the diagram which is very evident. So these are the four corners A, B, C, D of a square of side D. सभी को पता है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल होता है √2 मल्टीप्लाइड बाय D। यहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहां पे नेगेटिव चार्जेस हैं। वाई नॉट कॉल देम एज 1, 2, 3 एंड 4। वैसे तो स्टूडेंट्स एग्जाम में इसको हमें डायरेक्ट करना चाहिए
कि जो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस बाय डेफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। क्यों होता है दैट वी कैन सी। देखिए, वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चार्जेस पहले कहां थे? एट इंफिनिटी। अब वो कहां पे असेंबल हो गए? ए बी सी डी पे असेंबल हो गए। तो यहां पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, और जब ये इंफिनिटी पे थे तो जीरो है। तो नेचुरली जो वर्क डन आया वो प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये हम याद कर सकते हैं कि अगर असेंबलिंग का केस है तो जो वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन होता कि फाइंड द वर्क डन इन चार्जेस को हमने मान लिया डी असेंबल करना हो फ्रॉम ए बी सी डी टू इंफिनिटी, तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स आप याद रखें कि इन चार्जेस को डिसोसिएट करने के लिए जो वर्क डन होगा वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये दो फॉर्मूलेज आप बहुत क्लियरली याद कर लें। असेंबलिंग के केस में प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, एंड टू डिसोसिएट का केस अगर हो तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी सेड कि जो वर्क डन है इज इक्वल टू प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट मे आई अगेन एक्सप्लेन टू यू कि पोटेंशियल एनर्जी फोर चार्जेस की कैसे निकालते हैं। आप पहले ये नंबर्स लिख लें 1 2 3 4 और फिर पेयर्स बनाएं। पहला पेयर 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 एंड 3 4। तो इस तरीके से 6 पेयर्स बन जाते हैं। और स्टूडेंट्स हमें याद रखना है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस क्या? K multiplied by the product of the two charges with proper sign divided by the distance between them. For example, अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 लिखना है तो इट विल बी K मल्टीप्लाइड बाय प्लस Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई D। अगर 1 3 का लिखना है तो इट विल बी K इंटू प्लस Q इंटू प्लस Q डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू D। 1 4 का लिखना है तो K मल्टीप्लाइड बाय प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाई D। 2 3 का लिखना है, ये 2 है ये 3 है, K टाइम्स माइनस Q प्लस Q डिवाइडेड बाई D। 2 4 का लिखना है, ये 2 4 है, तो K मल्टीप्लाइड बाय माइनस Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू D। एंड अगर 3 4 का लिखना है तो K मल्टीप्लाइड बाय प्लस Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई D। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस के फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया वो वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें से हमने K माइनस के क्यू स्क्वेयर अपॉन डी कॉमन लेना है और उसके बाद ये टर्म्स अंदर आ जाएंगी। 4 माइनस 2 अपॉन रूट 2, 2 को लिखें रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी इंटू 4 माइनस रूट 2। तो इट वॉज स्लाइटली लेंथी बट नॉट रियली डिफिकल्ट. The second part in this question was कि find the work done in moving a charge Q naught from infinity to the point E. अब ये वही क्वेश्चन है, वही चार्जेस हैं ए बी सी डी, ये पॉइंट E यहाँ पे है। आप देख रहे हैं ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं? इक्वल हैं। हम वर्क डन निकालने से पहले पोटेंशियल निकालना चाहेंगे एट द पॉइंट E. That will be due to 1, that will be due to 2, 3 and
4। हमने फॉर्मूला वही लगाना है, k मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विद डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला 4 बार लगाइए और आप देख रहे हैं ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है। तो मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट E 0 है। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपने पहले भी सुना। वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। पोटेंशियल एट E अभी देखा 0 है, एट इंफिनिटी 0 होता है, तो वर्क डन टर्न्स आउट टू बी 0. And this is how we have solved these questions. And I thank all of you for watching the video. Thank you.